To teach you is about the perennial question is about what is the goal of the human existence. सो वेद में बेटे वेद में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है इसके बारे में कि एक जो कॉमन मैन की एक ले मैन बोले या कॉमन मैन बोले एक सामान्य आम आदमी की जिंदगी में वेद के अनुसार उसका गोल क्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था back in 1920s 1930s, and he talked about the physiological needs, the psychological needs, the self fulfillment needs, which we'll talk about. And then how do our Vedas, which have given those goals for human life something like 6,000 to 10,000 years back. Okay. इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पुरुषार्थ कर का एक वर्ड आया है। पुरुषार्थ दो चीजों से बना है, पुरुष और अर्थ। मीन्स पुरुष मीन्स लाइक एज इन ह्यूमन बीइंग, एंड अर्थ मीन्स का what is the meaning. So what it encapsulates is what is the meaning for being born as human being, which means that what is the objective or the goal of the human life. Okay. Now, let's quickly talk about first Maslow's hierarchy of needs. What you are looking at your screen is Maslow's hierarchy of needs, and it is divided into three broad categories like the basic need, the psychological need, and the self-fulfillment need. Okay, which is further categorized two needs as the physiological need and the safety needs as the basic need. Now, let me take maybe a minute to explain this to you. Consider a life where you have to struggle on a daily basis for the food, for the water, for your clothes, for your safety, for your house. जैसे कि हम लोग इंडिया में भी बोलते हैं, भारत में भी बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों बेसिक नीड्स है। आदमी के पास अगर रोटी कपड़ा और मकान नहीं होगा तो फिर वो बाकी बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं ज़िंदगी में, जो बड़े नीड्स होते हैं, यहाँ तक कि जो वो ध्यान लगाए या जो भी भगवान की तरफ अगर वो जाना भी चाहे तो पहले एटलीस्ट उसका पेट भरा होना चाहिए। खाली पेट से तो पूजा भी नहीं होती, राइट, कहते हैं ना। ओके, तो उसी के चलते ये जो बेसिक नीड्स हैं, आपको खाने पीने की, रेस्ट की, और आपके घर होने के, आपके ऊपर छत होने का, और सेफ्टी का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रात में सो रहे हो तो आप सेफ हो, कोई आपके घर में आके कोई डाकू या कोई चोर नहीं आ रहा है, या आप जानते हो कि कोई अर्थक्वेक नहीं आने वाला है। एटलीस्ट आपकी वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो एक डर नहीं आपके अंदर समाया हुआ है। So those are the physiological needs and the safety need, which every human need as their basic need to be satisfied for them to concentrate their mind for the higher need and to do the higher work. Okay. उसके बाद जो नीड होती है ह्यूमन की, जो जो ह्यूमन को मोटिवेट करता है, दैट इज बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स. Say for example, once this need is completed, then you want to have good friends, you want to have people whom you can trust, people whom you can talk, you can share your feelings, your parents, your brothers, your sisters, like all the society relationships, whichever you make, whether it's a husband, wife, a lover, or whatever, right? So that need plus the need to feel important, that is very important, which is known as esteem needs. Say for example, even if you have a good relation, but if you are not felt as if you are adding any value to that relationship, or if you are not feeling as if you are being valued in that relationship, that would also put you down. Okay. सो एक तो आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो ये होती हैं, एंड सेकेंड दैट यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि पीपल want to work in a very exciting projects, right? Something which gives them the minutes, something which wake them up in the morning, fill their body with energy, and they go to the work, right, with a fresh mind, with a first perspective, and try to do that work. Okay. और ये इसलिए ये भी एक ह्यूमन की बहुत नीड है। दे शुड बी लुकिंग देमसेल्फ एज बीइंग अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग, नॉट एज समथिंग हु हैज टू डू द रूटीन रोट जॉब which can be done by a machine, or say should be done by an animal, for example, right? इसलिए now
Coming to the next and the higher point, which is the self fulfillment need, which is self actualization. It only means that अब आपकी अगर ये चारों नीड्स अगर आपकी satisfied हो जाए, even then a time would come, maybe after 5 years, 10 years, 15 years, जहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये सब तो ठीक है, but what next? What can I give back to the society? How can I help other people grow? How can I be of help to other people? Not only to me or to my family, but also to be of help to the other people of my even my circle or my society or my friends. How can I put my potential to help? And that is why the people who write blogs, people who write books, people who write give the inspirational videos, even for example, like I am talking to you, I am giving you this video. Why am I doing this? It is because I want to give back something to all the kids like you, something which I have understood, right? And I'm in a position I can invest some time and give this back to you as a gift. And that is known as the self actualization. Now, the reason why I have explained you the Maslow's hierarchy is because what our Vedas have said thousands of years back sits very perfectly with this definition of hierarchy of human needs. Let's see how. Now, if you look at this, our Veda talks about the four fundamental goals of the human life. They are the Artha, the Kama, the Dharma, and the Moksha. So the moksha even sits on top of the self-actualization. So there is something which Maslow has probably not gone into the details of it, or probably he does not have the I would say the spiritual insight to go into that, which is known as the moksha. Okay, we'll come into this. Let's first talk about what these basic four things mean. Sorry, Artha, Kam, Dharma, and Moksha. So, Artha, in very easy words, it means all your material possessions, your money, all your houses, the material which you have collected in your lifetime, your self possessions, your dignity, all those things which we see as belongings, the material belongings, those are known as Artha. So वेद ये कहते हैं that every human being should strive to procure the resources which they think they should make their life and their family's life comfortable. तो हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में वेल्थ को क्रिएट करना और वेल्थ को एक्यूमुलेट करना को गंदी निगाहों से नहीं देखा गया है. इट डजंट मीन कि हर आदमी अपना सारा दुनियादारी छोड़कर पहाड़ में जाकर केवल तपस्या करे. नहीं, ऐसा नहीं है. वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी आई मीन 99% लोगों के लिए, जो लोग गृहस्थ हैं और जो लोग ना भी गृहस्थ हैं लेकिन जो लोग इस सोसाइटी में रह के अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अर्था से जूझना ही पड़ेगा. वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्या मटेरियल पोजीशन अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इकट्ठा किया है, ये उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखने वाला है. वो दो चीज़ों ये ध्यान रखने वाले हैं कि आपने जितनी भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्यूमुलेट की हैं, अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट की हैं, उससे आपको संतुष्ट हैं या नहीं. अगर आपकी ज़िंदगी एक दौड़ते हुए रोबोट की तरह बन गई है और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उससे, जिससे कि आपने इकट्ठा किया है अपनी लाइफ में, तब सब कुछ बेकार है. पहली बात. दूसरी बात, आपने जो इकट्ठा किया है, जो भी धन संपत्ति, बच्चे, परिवार के लिए, अपने लिए जो इकट्ठा किया है, वो उसके जो मीन्स हैं, उसके जो इकट्ठा करने के तरीके हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, वो धर्म के अनुसार होने चाहिए. इसलिए हम लोग थर्ड पॉइंट धर्म देखेंगे. वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, किसी को बिना चोट पहुंचाए आने चाहिए, किसी को बिना रुलाए आना चाहिए, कोई भी गलत काम किए बिना. उन सबको एक्यूमुलेट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना. काम का मतलब ये होता है कि आपके सारे जो फिजिकल सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपके जो पांचों इंद्रियां हैं, उन सब से आपको जो खुशी या जो सुखी मिलता है, उन सबको एक्यूमुलेट करना. एक लाइफ विच इज फिल्ड विथ लव, केयरिंग, friendship, pursuit of joyous and pleasurable life,
a life which doesn't even have all the work. It should have element of music, painting, intimacy, आर्ट, सिंगिंग, ब्यूटी, अफेक्शंस, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन बनाती हैं। अगर ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो पैसे तो बहुत इकट्ठा कर लेंगे, घर पे घर, कोठियों पे कोठियाँ बनाते चले जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब शून्य होगा। वो इंसान अंदर से शून्य हो जाएगा। इसलिए अर्थ के साथ उस अर्थ का कुछ काम भी होना चाहिए, उस अर्थ को काम में आए, उस इंसान के काम आए। उसके लिए उसकी लाइफ में इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, उस लाइफ में प्लेजर्स भी होने चाहिए। उसको, अगर वो उसका क्रिएटर है तो वो उसका भोक्ता भी बनना चाहिए, वो उसको भोग भी सके ऐसा भी बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी वेद बोलते हैं कि इसमें भी आपको अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप परस्यूट ऑफ प्लेजर में, परस्यूट ऑफ जॉयस लाइफ में इतने घुस जाए कि आपकी जो पूरी जिंदगी है वो एक काल कोठरी के अंदर चली जाए। मतलब आपको जिंदगी में अगर सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मुझे अपनी जिंदगी को प्लेजरेबल बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मान लीजिए किसी को ड्रिंक करने में अगर मजा आ रहा है, या किसी को केवल ताश खेलने में मजा आ रहा है, और वो एक नशेड़ी बन जाए, या वो एक ताश खेलने वाला वो जुआरी बन जाए, तो वो काम का तो मजा ले रहा है क्योंकि वो अपने आप को प्लेजर तो दे रहा है, लेकिन प्लेजर देने की से एडिक्टेड हो गया है। तो अ पर्सन शुड नॉट बी एडिक्टेड टू द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ एज वेल एज काम। Now, next, dharma. Now, dharma is like a balance, which balances the artha and the kama. Means इंसान भोगने वाला जो इंसान हो जो कमा रहा है, जो बना रहा है, जो बाजार, उसको इन दोनों चीजों को लिमिट में भोगना चाहिए तो बोलता है वेद, लेकिन लिमिट में भोगना चाहिए ये भी बोलता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इस दुनिया में सारे इंसानों के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक इंसान के ग्रीड के लिए पूरा विश्व की रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रीड जो होता है वो उसका कोई बेस नहीं होता है, वो अनंत गहरा काला कोठरी की तरह होता है। आप डालते जाइए लेकिन इंसान का ग्रीड खत्म नहीं होगा, राइट? तो धर्मा ये बोलता है कि आपके अंदर वो ग्रीड, एंगर और क्रुएलिटी ये सब खत्म होने चाहिए, या आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। आपको राइट, वर्चुअस और एथिकल वे ऑफ लाइफ को लीड करना होगा, which means to say that the decisions which you take, the way you make your money, and the way even you go and seek pleasure in your married life or outside your married life, you should always do that in a very balanced way. It should not go out of control. Anything which goes out of control in nature in general is going to be always be harmful. और धर्म ये भी कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर कोई if you see anybody whom you should be helping, you should go ahead and help that person. अगर आप जानते हो कि एक बंदा है जो असहाय है, जिसको मदद की जरूरत, और आपने उसकी उस समय मदद नहीं की जब आपकी क्षमता थी मदद करने की, तो ये बिल्कुल ही अधर्म वाली बात हो जाती है, क्योंकि धर्म वहां पे आपका एक इंसान होने का धर्म आपसे छूटता है वहां पे। अब हम बात करते हैं मोक्षा की। तो मोक्षा में हमारे ये बोलते हैं, वेद में ये बताते हैं कि मोक्ष, ये जो धर्म का अर्थ, काम और धर्म, तो ये इंसान ये एक कह लीजिए 99% लोगों के लिए है। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग यहीं फंसे हुए हैं। अर्थ काम में आप बोल लीजिए कि 90 लोग फंसे हैं, जिनको सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा दिखता है, जिनको सिर्फ अपने घर दिखते हैं, अपनी गाड़ियां दिखती हैं, अपने बैंक बैलेंस दिखते हैं, और या वो लोग जो लोग अपने भी प्लेजर में डूबे रहते हैं, वो नार्सिस्टिक लोग हो जाते हैं, जिनको अपने प्लेजर के आगे किसी और का कुछ नहीं दिखता है। वो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, हम अपना ईगो कैसे लोगों के सामने दिखाएं, हम ये कैसे दिखाएं कि हम कितने बड़े बन चुके हैं, राइट? तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आज आप अपने अगल बगल भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि इन्हीं दोनों में फंसे हुए हैं। धर्मा के लोग बात तो करते हैं, क्योंकि बात तो
करने में अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग सचमुच आगे बढ़ के धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं? मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 8% पीपल। सो 90 यहाँ पे हो गए, 8% धर्मा में हो गए, मे बी 2% पीपल who have risen beyond all these three. They see all of it as Maya, and they say that there has to be something else beyond the earth, Kama, and Dharma. The people who strive to go beyond all these three realms of life, they can then go for moksha. तो मोक्षा का मतलब वो लोग जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, दे वांट अ रिलीज फ्रॉम द लाइफ इल्यूजन, द इग्नोरेंस एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. ओके. May your life be simple and pure so that you know only beauty. May your mind be clear and quiet so you speak only of truth. May your heart be filled with love and compassion so you radiate light to all you meet. May all you do be blessed and with divine grace. Uh, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला भी रहा है तो आप उसको पलट के ना चिल्लाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको उस तरह से रिएक्ट नहीं करना है जैसे कि आपको उकसाया गया है रिएक्ट करने के लिए. वी आर ऑल मशीन्स हु आर बीइंग फेड टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, एंड देन यू कैन और आपके ऊपर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो भी आप क्वाइट रहे हैं. आई मीन आई एम जस्ट गिविंग मे बी अ वेरी बेसिक एग्जाम्पल्स, बट मोक्ष मीन्स जहाँ पे आप इन सारी दुनियादारी संसार की चीज़ों से, माया की चीज़ों से ऊपर आप आ गए हो. ओके. Okay, so I hope that this is clear to everyone. So Artha, Kama, Dharma, and Moksha, they became the four main pillars of the Hinduism way of life and Hinduism goal of